Good evening, everyone, distinguished guests, esteemed delegates, and participants. Uh, it is with a great pleasure that I welcome you all to today's important event on innovation in ZLD for industrial wastewater management. My name is Dr. Hitesh Jariwala, and I am Deputy Director from Management Textile Research Association. At a time when water scarcity is becoming one of the most pressing environmental concerns globally, the role of industries in sustainable water use is more critical than ever. The concept of zero liquid discharge or ZLD is no longer just a compliance mechanism, but it is a commitment to environmental stewardship, resource recovery, and long-term water resilience. Today's event brings together thought leaders, experts, industry representatives, and practitioners, each contributing to the ongoing transformation in how we view and manage the industrial wastewater. We are especially privileged to have with us our invited speaker, Sri Neeraj Mihani sir, who is a renowned expert in this field. We eagerly look forward to their insight and experiences on the implementation challenges and innovations in zero liquid discharge system. I also take this opportunity to extend a very warm welcome to the dignitaries and guests seated here. Your presence here reflects the importance of this subject and adds immense value to the discussion ahead. Let's please welcome them with a round of applause. Now, before we proceed, I request all of you to put your mobile on silent mode to ensure the smooth flow of the program. Now, I invite Sri Vijay Mewala sir, immediate past president of SDCCI, for welcome address. Sir, please. Thank you. Thank you. Welcome to all of you in an invitation in a zero liquid discharge for the industrial wastewater management. Already હિતેશભાઈ તમને માહિતી આપી દીધી છે શેનો પ્રોગ્રામ છે એવોર્ડ પ્રોગ્રામમાં અને આજના ટાઈમમાં જે મોટો સૌથી પ્રશ્ન છે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટોમાંથી અહીંયા ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટો બેઠા છે વોટર જેટ એજેટ પ્રોસેસ હાઉસમાંથી બી આવ્યા છે અમુક લોકો અને જે ઝીરો વોટર ડિસ્ચાર્જ અને જે વોટર જેટ મશીનમાં હું ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયો છું એટલા જાણું છું કે આમાં શું તકલીફો હોય છે અને આજે લોકો વોટર જેટને થોડો સાઇડટ્રેક કરીને એરજેટ તરફ વળવા માંડ્યા છે એનું કારણ એ છે કે વોટર જેટમાં જે આ ડિસ્ચાર્જની તકલીફો છે સીડીપીમાં એન્ટ્રીની તકલીફો છે એન્વાયરમેન્ટ જીબીસીપી બોર્ડમાં જે તકલીફો આવતી હોય એને લઈને લોકો વોટર જેટ છોડીને એરજેટ તરફ જવા માંડે છે એફએઆરમાંથી બી લોકો એરજેટ તરફ ને એરજેટમાં ક્વોલિટીઓનું લિમિટેશન ઓછું છે જેટલું વોટર જેટમાં છે અને જેના વોટર જેટ છે તેના ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ હોય કે જેની મિલો ચાલતી હોય તેમને સોલ્યુશન અને તેમના ઉપાયો અને એનો કેવી રીતે એમાં આપણે અંદર આગળ વધી શકીએ એના માટે આ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હું સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી આપ સર્વ ઉપસ્થિત મહેમાનોને આ સેમિનારમાં આવકારું છું અને આજે આ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં આપણે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને મંત્રા મેનમેડ ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ એસોસિએશન દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ મહત્વપૂર્ણ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જોઈન્ટલી ઓર્ગેનાઇઝ વિથ ધ મંત્રા અને આ વિષય પર ઇનોવેશન ઇન ધ ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ ફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વોટર વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ ના વિષય પર આજના સમયમાં અત્યંત જરૂરી કારણ કે ઉદ્યોગના વિકાસ સાથે સાથે પર્યાવરણનું રક્ષણ પણ આપણા સૌની જવાબદારી છે આજે શહેરથી આપણી ફેક્ટરીની બહાર પાણી હોય કે કંઈ પણ હોય એને બાજુવાળો ફરિયાદ કરે એટલે ઓફિસર આવી જતા હોય છે એટલે એ પણ આપણી જવાબદારી બને છે કે એને ગમે ત્યાં ડિસ્ચાર્જ ના કરી શકીએ વોટર
વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ માટે નવીનતા અને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી ઉદ્યોગ અને સસ્ટેનેબલ બનાવશે અને આવનારી પેઢી માટે સ્વચ્છ પર્યાવરણ છોડી જશે. આજના સેશનમાં ખાસ આમંત્રિત શ્રી નીરજ વિઠાણી છે કે જેઓ એલોએસ સસ્ટેનેબલ બાયો એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર છે. તેઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીશું. વેલકમ સર. અને સાથે આજના સેશનના ઉદ્યોગ જગતને વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે નવી દિશા બતાવશે અને આપ સૌને વ્યવહારુ ઉકેલ તેમજ આપના ક્વેશ્ચન જે હશે તેના યોગ્ય જવાબો પણ આપશે. સાથે સાથે મંત્રાના હેલો પણ સાથે જોડાયા છે. પ્રફુલભાઈ ગાંધી પણ સાથે છે. અમારા સેક્રેટરી શ્રી વિજયભાઈ જરીવાલા પણ છે. તેમજ આ કમિટીના ચેરમેન કો-ચેરમેન શ્રીઓ અને આપ સર્વેને ફરીથી હું આ સેમિનારમાં આવકારું છું. અને આ સેમિનાર આપણા ઉદ્યોગને ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે તેવું વિચારી અને શહેરનું પ્રદૂષણ ઓછું થઈ શકે. એર પોલ્યુશન હોય કે વોટર પોલ્યુશન હોય. એર પોલ્યુશન પર બી છે અને આજે આપણે વોટર પોલ્યુશન પર જાણવાનું છે અને વોટર પોલ્યુશન કેવી રીતે આપણે ઓછું કરી શકીએ તેના પર આ સેમિનાર છે. બાકી આમાંથી કંઈક આપ ગ્રહણ કરીને જાઓ અને આપણે આપણો ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરીએ એ સર્વેને વિનંતી. ફરીથી આપ સર્વેને આ સેમિનારમાં હું આવકારું છું. વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મેવાલા સાહેબ. હવે હું શ્રી વિજયભાઈ મેવાલા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજે આપણા જે એમિનન્ટ સ્પીકર છે વિવેકભાઈ વિઠાલ, તો એમનું ફ્લાવરથી સન્માન કરે પ્લીઝ. થોડાક પાછળ Now I request Dr. Arun Prakshin sir, Director Mantra, to welcome Vithani sir with the bunch of flower. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આમાં દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બેક ટુ બેક Now I request Prafulbhai Gandhi, Secretary of Mantra, આ હિસાબના ઘણા સેમિનારો ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રી માટે થતા હોય છે. એટલા માટે ફ્લો લીધો પાછો કારણ કે હમણાં અમે પાછું એક નવું સીએસસી સેન્ટરનો એક પ્રોજેક્ટ હાથમાં લેવા જઈ રહ્યા છીએ. જે લગભગ 100 થી 200 કરોડનો છે અને એ પણ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે જ જે વોટર જેટ છે અત્યારે જે ઓટોમાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે, નવી નવી ક્વોલિટીઓ આવી રહી છે,
અને આજે જે ચાઇનામાંથી જે ક્વોલિટી આવે છે ને અમુક ક્વોલિટી હોય છે એ આપણે બનાવી નથી શકતા. એના માટે આપણે અહીંયા સુરત જે ક્લસ્ટર છે ટેક્સટાઇલમાં, અને ટેક્સટાઇલના ક્લસ્ટરને જરૂરિયાત છે સીએફસી સેન્ટરની, કા ઇનોવેશન કા ઇન્ક્યુબેશન કે કોઈ આ જે નામ આપો અને એમાં સ્કિલિંગ પણ આવશે, આરએનડી પણ આવશે અને નવી નવી ક્વોલિટીના તમને સેમ્પલ્સ જે આવ્યું હોય તેનું ટોટલ બાયફર્કેશન એમાં થશે. એટલે એની અત્યારે મીટિંગ હતી શહેર સાથે બી, એમના રક્ષિત શહેર સાથે બી વાત થઈ અમારી આ હિસાબની, અને એના માટે ચેમ્બર કાયમ સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. અને બીજું કે મંત્રામાં જે ચાલે છે લેબ, એવી એક લેબ આપણી ત્યાં અહીંયા ટેસ્ટિંગ સેન્ટર સમૃદ્ધિમાં પણ ચાલે છે. સમૃદ્ધિમાં પણ દરેક ફેબ્રિક છે, યાન છે, એની ટેનાસિટી હોય કે એનું કન્સ્ટ્રક્શન હોય, દરેક ટેસ્ટિંગ લેબ સમૃદ્ધિમાં પણ ચાલે છે. અને સાથે સાથે ક્લાસીસ પણ ચાલે છે. મંત્રા પણ કરે છે અને આપણે પણ એવી રીતે કરીએ છીએ. એટલે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની સાથે ચેમ્બર કાયમ જોડાયેલું છે, અને સાથે સાથે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે ચેમ્બર જોડાયેલું રહે છે. એટલે આવા પ્રોગ્રામો કાયમ થતા જ હોય છે અને આપણે સંખ્યા બી ઘણી સારી છે. એટલે જાણી શકાય કે તમે લોકો કેટલા એન્વાયરમેન્ટ માટે જાગૃત છો. Now I request Dr. Anup Rakshit sir, Director of Mantra, to say a few words about this program. Namaskar. Good evening to all of you. Good evening. मंत्रा के बारे में सूरत के सभी लोग जानते हैं, बावजूद उसके भी थोड़ी सी मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसा विजय भाई ने भी बताया, हमारी मंत्रा को खास तौर से लोग जानते हैं टेस्टिंग लैबोरेटरी के हिसाब से, और टेस्टिंग सर्विसेज हमारा मेजर एक्टिविटी भी है। बावजूद उसके भी, हालांकि जैसे नाम है टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वहाँ पे रिसर्च का कई सारे काम होते रहते हैं, पर उसकी प्रायोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हालांकि स्पॉन्सर करते हैं, इसलिए रिसर्च की जो कंटेंट है वो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को फुलफिल करते हैं। रही बात टेस्टिंग की, इसके अलावा मतलब नॉर्मल फैब्रिक टेस्टिंग, यार्ड टेस्टिंग के अलावा भी हमारे पास दो सर्विसेज है। एक है एनर्जी ऑडिट और दूसरा है एनवायरमेंटल ऑडिट। उसी के तहत मतलब वाटर टेस्टिंग, कोल टेस्टिंग एंड सिमिलर बहुत सारे मटेरियल्स की जो टेस्टिंग, हैवी मेटल्स की टेस्टिंग, इस तरह के बहुत सारे टेस्टिंग्स वहाँ पे होते हैं। आपकी अगर डिटेल जानकारी चाहिए या तो हमारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं या आप तो विजिट करें, वो सबसे बेहतर है। Then 1-to-1 we can speak with each other. मंत्रा में हमने इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाते हैं। इंस्टीट्यूशन के तहत पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया है फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी कोर्स, और शॉर्ट टर्म कोर्स के तहत बेसिकली ये अपस्किलिंग एक्टिविटी है, जैसा सीएफसी के जरिए विजय भाई ने बताया है, उनका भी प्रोग्राम चलता है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज, बेसिक रीडिंग, प्रोसेसिंग, लैबोरेटरी स्किल डेवलपमेंट, ऑपरेटर स्किल, सिमिलर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी जानकारी आप या तो विजिट करके हो या तो वेबसाइट से भी आप जान सकते हैं। आज का प्रोग्राम पानी, हालांकि देखने में हमेशा अवेलेबल है इसलिए हम इसकी महत्व नहीं समझते, पर पानी कितना महंगा है वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल। सूरत की बिजनेस कॉम्पोजिशन में द टू मेजर कंपोनेंट्स, एक है वीवर्स, वाटर जेट लूम एंड प्रोसेस हाउस। बहुत बढ़िया नंबर से प्रोसेस हाउस आज यहाँ पर है, और प्रोसेस हाउस की जो effluent ट्रीटमेंट एक्टिविटी है, कई सारे effluent ट्रीटमेंट प्लांट्स भी है, बट दे आर ऑल ओवरलोड, टेरिटरी ओवरलोड। बावजूद उसके भी इसके रिक्वायरमेंट भी है, हर तरह से इसके प्रयास चालू है, बावजूद उसके भी जानकारी जरूरी है कि किस तरह से हम पानी को प्रोसेस करें और उसी के चलते सबसे मिनिमम लिक्विड डिस्चार्ज, मतलब हमारी नदी हो, सागर हो या कोई भी जो वाटर बॉडीज है जहाँ पे हम डिस्चार्ज करते हैं, वो कितना बैलेंस और कितना सेफ रहता है, इसके ऊपर
आज की चर्चा की विषय यही है। ज्यादा समय ना लेते हुए आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्टर जरिया। Thank you, Rakshit sir. And now it is my distinct honor to introduce our keynote speaker for the day, Mr. Neeraj Mithani sir. Sir is the founder and managing director of Eolus Sustainable Bioenergy Private Limited and director of Ba Prerna Clean Earth Private Limited. Mr. Mithani is an innovative entrepreneur and a visionary leader in the field of sustainable environmental solutions. With a passion for combating air and water pollution, he established Eolus Sustainable Bioenergy Private Limited, a Surat-based company specializing in advanced water and wastewater treatment technologies, air purification solutions, and green energy innovations. In addition to his leadership at Eolus, Mr. Mithani also serves as a director at Ba Prerna Clean Earth Private Limited, where he plays a pivotal role in transforming municipal and industrial waste into valuable resources. His expertise has been instrumental in driving sustainable waste management projects, including the recycling of RFD to generate clean energy and the utilization of organic compost and inert material for land restoration and afforestation initiatives. With over 2 decades of experience, Mr. Mithani has been at the forefront for the developing and implementing cutting-edge technologies, including electrochemical system, advanced oxidation processes, and botanical extract-based reagents. His contributions have significantly advanced the adoption of sustainable practices across industries, municipalities, and public projects. If I talk about the key expertise and achievement of Mr. Mithani, so spearheading the development of energy efficient and eco-friendly water treatment systems tailored for diverse industries, pioneering electrocoagulations and electro-oxidation technologies for treating hazardous and complex wastewater, driving RDF recycling projects in collaboration with Ba Prerna Clean Earth Private Limited, delivering sustainable waste management solution in India and Africa, contributing to afforestation projects in saline degraded lands through the use of organic compost and inert material from waste processing, developing cost-effective solutions for industrial and domestic water softening, promoting large-scale sustainability projects for cleaning river, ponds, and water bodies using ozone-based and other advanced technologies. His role at the Ba Prerna Clean Earth Private Limited as a director, Mr. Mithani is actively involved in establishing 2,000 ton per day RDF processing line in urban and rural areas across India and Africa, leading initiatives for compliance with environmental regulations and creating scalable, law-abiding waste management systems, supporting municipalities in mitigating pollution through efficient resource recovery and energy generation, innovating land restoration technique using byproduct from waste recycling plants, fostering green infrastructure and afforestation. So please join me in welcoming Mr. Neeraj Mithani to the podium with a big round of applause. Please, sir, over to you. Thank you. Thank you so much, sir. So, Honorable Mehwala sir, Jariwala sir, Rakshit sir, Gandhi sir, and Jariwala sir, all the dignitaries available over here. Just before starting, I would just like to ask, how many are comfortable with Gujarati and how many are not comfortable with Gujarati? If you are not comfortable with Gujarati, please raise your hand. All are comfortable with Gujarati. That's great.
I'm very happy to. Yes. So I have made a little change in the topic, and the topic में जो नीचे ग्रीन लाइन है, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल सॉल्यूशंस, ये मतलब ये थोड़ा आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा और थोड़ा नया भी लगेगा, क्योंकि आमतौर पे I'll continue in all three languages. आमतौर पे waste of yes. I'm with you, sir. Yes, sir. I'm comfortable with all three languages. Okay. आमतौर पे जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात आती है इंडस्ट्रीज के लिए, तो इंडस्ट्रीज कंपेयर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज एंजाइना पेक्टोरिस। ये कौन सी बला का नाम है, कोई बताएगा? हार्ट पेन जिसको गलतफहमी माना जाता है कि हार्ट पेन है कि एसिडिटी का पेन है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। अभी ये एंजाइना पेक्टोरिस ऐसी चीज है कि आप इसको इग्नोर करोगे तो अपनी हेल्थ खो दोगे, और इसको अटेंड करोगे तो वेल्थ खो दोगे। और इसका एक ही इलाज है, बाईपास। इंडस्ट्रीज वाले बाईपास को कुछ अलग से लेते हैं। तो आज हम इलाज करने की कोशिश करेंगे बाईपास, विदाउट सर्जरी। So let's start with our presentation. मेरा फोकस जो रहेगा, we'll go to what we have done till now. लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मुझे धक्का मारा। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ गया। कांग्रेस शुगर फैक्ट्री के तब के चेयरमैन थे मनहर भाई पटेल, उन्होंने मुझे एक बार इनवाइट किया कि हमारा एक एफ्लुएंट है, थोड़ा देख लो। मैं जस्ट नया आया था पानी की इंडस्ट्री में, उससे पहले मैं ऑयल एंड गैस में था। तो वहां पे यही बात होती थी कि तीसरा विश्व युद्ध ऑयल एंड गैस के लिए नहीं कभी होगा, वो पानी के लिए होगा। और मैं तब बहुत फर्मली मानता था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हो सकता है, तब भी हो रहा था। जो भी ईरान, इराक, जो भी क्राइसिस हो रही थी, वो सब ऑयल एंड गैस के लिए हो रही थी, पानी के लिए कभी हो ही नहीं सकती। ऑयल एंड गैस के लिए होगी और हो रही है ऑलरेडी। तो उसमें तीसरे विश्व युद्ध में कुछ बाकी नहीं रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार पानी को ट्रीट करने के लिए मैं निकला, और डे आफ्टर डे, डे ओवर डे, मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है डेली कि अगर विश्व बचेगा और युद्ध होगा तो पानी के लिए ही होगा। अगर विश्व बचेगा और युद्ध होगा तो पानी के लिए ही होगा, बाकी किसी के लिए युद्ध नहीं हो सकता। आज भी हम जो भी रिसोर्स के लिए जो भी फाइट देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में देख रहे हैं या इजराइल में देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो सारी रिसोर्सेज की फाइट है। उसको और कोई भी शांति से कोई लेना देना नहीं है, सारी रिसोर्स की फाइट है। और रिसोर्सेज आर श्रिंकिंग। अभी थोड़ा माहौल बनाने के लिए मैं आपको दो चार पहले एक जनरलाइज टिप दे देता हूँ। कल सुबह उठ के अगर आप मेडिटेशन करते हो, मैं आपको मतलब पूरे ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ना है एकदम इजी टिप्स देता हूँ। कल सुबह आप उठ के मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो, चाहे पद्मासन में या ऐसी कुर्सी पर, अपने हाथ को ऐसे खुला रख के जब आप बैठते हो या ऐसे कोई भी मुद्रा में बैठते हो, उससे पहले थोड़ा पानी हाथ पे लगा लेना, और फिर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे फोकस करना, जैसे भी आप फोकस करना, और अपने आप से इनवाइट करना ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी को, जो एनर्जी आपने अब तक कभी भी आपने अब तक कभी अनुभव नहीं किया होगा। खाली आपका हाथ गीले होने से कल सुबह आप वो एनर्जी को जो रियलाइज करोगे, वो एनर्जी को आप फील करके बताना कि ये ब्रह्मांड पानी के बिना क्यों नहीं था। सृष्टि बनाई, पहले पानी बनाया, तब लाइफ बन पाई। और सबके साथ जब मेरे ऑफिस में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने जस्ट एक थॉट शेयर किया था कि हाउ इज वाटर एंड लाइफ कनेक्टेड। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में मतलब पृथ्वी पर जितना परसेंटेज वाटर है, उतना ही परसेंटेज अपनी बॉडी में वाटर है। ये मून की इफेक्ट, जो मोशन की इफेक्ट है, वो समुद्र पे पड़ती है, तो अपने मेंटल हेल्थ पर भी पड़ती है। लूनाटिक जिसको बोलते हैं, वो सब कनेक्टेड है, बहुत इजीली कनेक्टेड है, राइट।
ये सब तो हम मानते हैं इतना तो, ओके। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जैसे जैसे हमारी आसपास के पानी का हार्डनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे मन की हार्डनेस बढ़ती है। जैसे जैसे हमारे आसपास के पानी का पोल्यूशन बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी ईमान की पोल्यूशन बढ़ती गई। और आप इसको हमेशा से रिलेट कर पाओगे अब से कि आसपास के पानी का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो विद दैट, क्योंकि मैंने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी है तो थोड़ा पेपर फोड़ दिया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। दोनों बोतल से, दोनों के ऊपर प्राइस टैग लिखा हुआ है, एक 20 रुपया लीटर है, एक 99 रुपीज लीटर है, दूसरे में पेट्रोल लिखा है, पहले में पानी लिखा है। अभी लॉजिकली आपको विद इन ए मिनट आपको आंसर देना है कि महंगा कौन सा है। पेट्रोल पेट्रोल पक्का? नहीं, पानी महंगा है, पानी महंगा है। कैसे कैसे? आउट ऑफ कंट्री में तो पानी की बहुत वैल्यू है। अरे नहीं, हम तो ये 20 रुपए वाली बोतल की बात कर रहे हैं। मैंने प्राइस टैग लिख डाल दिया, 99 रुपीज अ लीटर एंड 20 रुपीज अ लीटर। इसका वजह क्या है? सस्ता है पानी, लेकिन वजह क्या है कि काफी मात्रा में मिल रहा है, उसका लिए वो कंट्रोल में है पेट्रोल, इसलिए उसके महंगा है। बाकी वैल्यू वाटर की वजह क्या है? मैं आपका एक लॉजिकल आंसर बता देता हूँ, बाद में आप मान लेना कि पानी सस्ता है कि पेट्रोल सस्ता है। अरबस्तान के कुएं में या इराक के कुएं में या वेनेजुएला के कुएं में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वहां से ऑयल 1-1.5-2 किलोमीटर गहरा ड्रिलिंग करके निकाला, वहां से कहीं आपके बड़े से वेसल में आपको ट्रांसपोर्ट करके रिलायंस की 60,000 करोड़ रुपीस की रिफाइनरी तक पहुंचाया, वहां से रिफाइन हुआ और आपके नजदीकी 60,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की जमीन पे बने हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचाया, आपके घर के नजदीक 1-1.5 किलोमीटर में। और उसमें 40 रुपया तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, फिर वो 90 रुपीस का मिल रहा है। और आपके पास कोई काम धंधा नहीं था तो आपने एक आरओ मशीन लगा दिया, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से भी 1.5 लाख रुपया लोन लिया, बोरिंग करके बिना कोई परमिशन के बोरिंग करके पानी ले लिया, बोतल भर दी और बेच दी, 10 रुपए की बोतल, 20 रुपए की बोतल, 1 लीटर, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। कोई स्टैंडर्डाइजेशन खाली लेने के लिए बनाया था और कुछ नहीं था, और फिर भी वो 20 रुपए की लीटर बेच रहा है। आज 20 रुपए की है, अगले साल 25-30 रुपए की है। महंगा क्या है? पानी 1 रुपए की कॉस्टिंग 20 रुपए में जा रही है। 1 रुपए की ज्यादा हो गया। बोतल बोतल सब हो गया ना 1 रुपए में, पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट आ गया। फाइन, बट अब कन्विक्शन है कि पानी महंगा है, महंगा है। राइट? ये कन्विक्शन हमारे अंदर तभी आता है जब जीपीसीबी वाले आते हैं। बाकी कभी ये कन्विक्शन नहीं आता पानी महंगा है। तो ये सारी कॉस्ट मैंने ऐड नहीं करी। सो हमारा आज का जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन का एजेंडा रहेगा, वो हम ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो हमारा एक चैलेंज बना हुआ है, वो चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करें, उसको कैसे एक लायबिलिटी की जगह पे एक एसेट बनाए, कैसे हम इसको प्रॉफिटेबल बनाए, कैसे इसको ऑपरेट करके भी हम पैसे न गवाएं, और इसको ऑपरेट करना एक जिम्मेदारी भी समझे और साथ साथ में उसमें से कुछ अर्निंग भी करें। तो ये कैसे हो सकता है, ये पूरी ड्राइव हमारी उसी में रहेगी। हम थोड़े केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे और सर्कुलर इकोनॉमी की ये जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी बातें मेरे हिसाब से इंडस्ट्रीज के लिए यही हो सकती है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करो। गुजराती में कहिए सांप पर न मरे लाठी पर न तूटे, અને એ સાપને પાછો ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં પણ રાખી શકાય, એ લાઠીને બાજુમાં પણ રખાય, સાપ ક્યારે तो लाठी तो चेंज बनने वाला पॉलिटिक्स है उसका। So we'll enter into that
ये हम जो भी टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं वो हमारे सारे पहले टेक्नोलॉजी को हमने पेटेंट कराने की कोशिश करी थी, बाद में हमने वो पेटेंट कराने की कोशिश छोड़ दी है। हमें पेटेंट नहीं कराना है। लेट पीपल कॉपी अस, लेट पीपल कॉपी अस। हम चाहते हैं कि पीपल कॉपी करे, हमसे कुछ सस्ता भी बना के दे, हमें खुशी होगी कोई हमसे हेल्प लेने आए। और सारी टेक्नोलॉजी हम विदाउट एनी कॉस्ट हम ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। कुछ भी हमें लेना नहीं है। आप मेरी रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर सकते हो तो आई एम मोर देन हैप्पी। रिजल्ट्स को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो तो आई विल हेल्प यू। लेकिन हमारी अंतिम इच्छा यही है कि बिफोर वी स्लीप लेट बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर बी ट्रीटेड एवरी डे, एवरी मोमेंट अक्रॉस द ग्लोब। पैसे की बात करते हैं, गुजराती लोग तो पैसा नहीं जो बात कर रहे ना, पैसा नहीं जो बात कराए, कुछ नहीं बात तो ना कराए। 2025 में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की मार्केट साइज 30 लाख करोड़ रुपीस है। ये जो भी फिगर्स लिखे हैं वो बिलियन डॉलर्स में है। इट अमाउंट्स टू अराउंड 30 लाख करोड़ रुपीस। और 2032 में ये फिगर होने वाला है अराउंड 54 लाख करोड़ रुपीस। आज के इंडिया के जीडीपी का 20% वैल्यू है। ये ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट है। अभी सोचना कि वाटर जेट चलाना है कि वाटर ट्रीटमेंट चलाना है। हमारे सूरत के ही एक महानुभाव है जिन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल्स बंद करके अभी खाली वाटर ट्रीटमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि व्हाट शुड वी डू, और अपना पानी ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सी ये इंडस्ट्री बहुत आयामों से चलती है, बहुत चीजें इसमें मायना रखती है। अभी वापस मैं पैसे पे आपको ले जाऊं। आज शाम अभी डाउ जोन्स खुला होगा, डाउ जोन्स गिरता है, कल अपनी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाली है? पक्का? अभी आप यूएसए से तो कितने दूर हो। कल यूएसए में कोई ऐसा आया कि ब्याज दर बढ़ाएंगे नहीं। सोने के भाव में अहमदाबाद में क्यों इम्पैक्ट आता है? अफ्रीका में कल लिथियम मिल गया तो टाटा के भाव क्यों बढ़ेंगे? हम क्यों अपने आप को मानते हैं कि हमारी फैक्ट्री ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, सबसे अलग है, ये इंडस्ट्रियल एरिया से भी बाहर है, हम कहां किसी से कनेक्टेड है? आपकी हर सांस ग्लोबली कनेक्टेड है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आप पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो, तो ब्रह्मांड की इकोनॉमी का भी हिस्सा हो। आप ब्रह्मांड की इकोनॉमी से आप अलग नहीं हो। आप अपना एफ्लुएंट ट्रीट नहीं करते हो तो इसकी इंपैक्ट कहीं ना कहीं होने वाली है, और ये इंपैक्ट के बिना आप रह नहीं पाओगे। सो विल अगेन कनेक्ट कि हमें क्यों करना चाहिए। कोई मुझे बताएगा इससे एफ्लुएंट ट्रीट करके पैसा कैसे कमाया जा सकता है? अपना एफ्लुएंट, अपनी फैक्ट्री का। अपनी फैक्ट्री का एफ्लुएंट ट्रीट करना है आपको, अपनी फैक्ट्री का एफ्लुएंट करना है, किसी और का नहीं। ओके, साइड क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सूरत की एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम थी, कितने लोग जानते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम? कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, यस।
लेकिन सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम थी, पता है किसी को? यस। एक कंपनी का चिमनी धुआं निकालता है और वो लिमिट से ज्यादा है, और दूसरी कंपनी ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जो धुआं को कंट्रोल करते हैं। तो जो धुआं को कंट्रोल करेगा उसका खर्चा जो धुआं निकाल रहा है वो देगा। दैट इज द कोर ऑफ द स्कीम। वैसी सिमिलर स्कीम ये एनवायरमेंट डे के दिन से ट्रायल मतलब एक ट्रायल बेसिस पे सूरत में इंप्लीमेंट हो चुकी है। दैट इज सूरत एफ्लुएंट ट्रेडिंग स्कीम। जैसे एमिशन ट्रेडिंग 2019 में शुरू करी थी, और शुरू किसने करी थी जानते हो सर? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ में कोलैबोरेशन में ये हुआ था, एपिक। और उसमें जयपाल करके देयर वाज एन एनजीओ व्हिच वाज आल्सो इन्वॉल्वड। तो इन लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ येल, तो इनको क्यों इंटरेस्ट पड़ा शिकागो को, येल को? कोई चैरिटी के लिए तो ये लोग कभी नहीं आते। अभी एफ्लुएंट ट्रेडिंग स्कीम चालू हो चुकी है सूरत की, और वो प्रायोरिटी में इंडिया में पहले सूरत में इंप्लीमेंट होगी, बाद में इट विल बी टेकन अप टू एल्सवेयर, और ये पूरी इंडिया में होने वाली है। अभी ऐसे दो चार चीजें ऐसी भी है कि आज हम समझते हैं कि चाइना में कोई एक लॉ बना है, हम समझते हैं कि ये चाइना का लॉ है, लेकिन उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या आने वाला है? नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट पे अपने इंपैक्ट आता ही है। और स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, हमारी बी सिस्टम उसी को कल डेफिनेटली एडॉप्ट करेगी ही करेगी। इसको बिना एडॉप्ट किए चल नहीं सकता। सारे ग्लोबली लिंक्ड, दैट इज द कोर। हमारे यहाँ कोई नया ऑर्डिनेंस लाना होता है तो उसकी बहुत सारी लंबी लंबी प्रोसीजर है। ये अपने ट्रम्प साहब रोज शाम को कुछ बोलते हैं, ट्रम्प साहब रोज शाम को कुछ बोलते हैं, और उनका जो जिसका रेफरेंस भी आएगा CAGR, वो डेली अपडेट होता है। इट्स कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस उनकी रूल बुक है, वो डेली अपडेट होती है, और एवरी सेकंड डे वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाता है। तो आज जो बोला, अभी बोला, रूल पास किया, वो अपडेट हो गया, आज से अभी से वो रूल हो गया। तो इतनी जिसको बोल सकते हैं आप वोलेटाइल रूल बुक है। अपने यहाँ तो वोटर एक्ट कब बना था? मेरे जितना पुराना वोटर एक्ट है अपना। अपडेशंस होते रहते हैं डेफिनेटली, बट इट्स स्टिल हम टाइम के साथ में नहीं चल रहे। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। बिना इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम समझे, जब तक हम ये समझते रहे कि अपना एफ्लुएंट ट्रीट करना खाली जीपीसीबी को दिखाने या कंप्लायंस इसके लिए या अपना पड़ोसी कंप्लेन ना करे इसके लिए है खाली, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी। जब तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, एक एक बूंद पानी का हिसाब जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम पानी को ट्रीट करने के लिए कभी एनकरेज होंगे नहीं। और जब तक हम पानी को ट्रीट करने के लिए कभी एनकरेज होंगे नहीं, तब कंप्लायंस में मैंने जो पहले बोला था एंजाइना पेक्टोरिस का इलाज बाईपास, उसी के ऊपर हम फोकस रहेंगे, और वो हमें कहीं पे भी नहीं ले जा सकता। बाईपास होने के बाद में आप बाद में कॉन्शियस होने से अच्छा है कि अभी कॉन्शियस हो जाए। सो बहुत फटाफट बता देता हूं, हमारा मिशन एक ही है, आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वाटर या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, प्रोसेस वाटर या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, वी विल हेल्प यू आउट। हमारे पास बहुत सारा ऐसा रिसर्च वर्क इकट्ठा किया हुआ है जो अभी जस्ट हमारे बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज है, इतनी इजी टेक्नोलॉजीज है जिसको आप सोच नहीं सकते कि इतना इजीली ये कोई कर सकता है। आप
आपने कभी, आप में से किसी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हो? मैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कंपैरिजन अभी बात नहीं करूंगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हो, और किसी ने खाली 10 KL का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हो, कोई भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 15 लाख के आसपास में मिनिमम बजट जाता है। गवर्नमेंट स्कीम में भी 15-20 लाख रुपए का मिनिमम बजट। हमारा 10 KL का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम 1 लाख रुपए से नीचे में, और ये टेक्नोलॉजी इतनी इजी है, आपके यहाँ पे लगा, 10 लोगों को पता चला, 10 लोग कॉपी करेंगे, एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट 10 लोग ऐसे हैं जो 10-10 KL रोज बचाएंगे, तो रोज शाम को there is a benefit of at least 1 lakh liters, तो तापी तापी मैया रहेगी। तो anybody can approach us, we'll help you out, और बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में हम काम करते हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स में काम करते हैं। हमारा काम पंप बेचना नहीं है, हमारा काम टैंक बेचना नहीं है। हम आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में इसको कैसे, आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, माइनर मॉडिफिकेशंस में आपको कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सारी हेल्प करेंगे। वाटरजेट की सर बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो CTP वाटरजेट का लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट एबल टू ट्रीट इवन 1 लीटर ऑफ वाटर कॉम्प्रिहेंसिवली। हमारे कुछ सॉल्यूशंस है, 2 बूंद डाला, अभी 2 बूंद जिंदगी के डाले और वो पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया। इसमें से आपका जो एफ्लुएंट है और जो आपका ऑयली स्लज है, वो दोनों सेपरेट हो गए। उसको आप 100 बार मिक्स कर लो, वो सेपरेट के सेपरेट ही रहेंगे, और उसको सेटल करके आपको वो पानी रीयूज कर लेना है। आपके पास ऑलरेडी एक RO लगा हुआ है, वो RO में से उसको पास कर लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वही RO में से पास कर लो, इतना नीचे से कम निकाल देना। अगर आपने समझो ZLD 100% आप 100% कॉन्शियसली नहीं कर सकते हो, लेकिन 70% 80% करने की तो कोशिश करो। करोगे तो कुछ पाओगे, करोगे तो कुछ जानोगे। फिर 100% करने के लिए हम कोशिश करेंगे साथ में, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा कि हम कुछ कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम मूव करें, और फिर कोस्ट को एनालिसिस करते रहेंगे। और ये कोस्ट आपको मेंबरशिप फी, चैम्बर फी, या फिर नो इंटरेस्ट का चैम्बर सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर मेंबरशिप लेने के बावजूद भी कोई आके चपरासी डंडा मार के जाता है, इन सब से ये सस्ता लगता है, तो अपनी यही फैक्ट्री में करना चाहिए। दैट्स सिंपल। तो जैसे मेरी कंपनी का नाम सजेस्ट करता है, हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सस्टेनेबल वे में बात करते हैं। अफोर्डेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तभी सस्टेनेबल होगा। रोज खर्चा करोगे, 27 साल का बेटा हो गया, कमाता नहीं, तो पूछोगे कि बेटा कब कमाओगे, 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, चौथी बार बोल दोगे कि भैया तू अपना रास्ता नाप ले। Same happens with our effluent treatment, and it is not that easy. So we'll move step by step with that. हर एक इंडस्ट्री का अपना वेस्ट वाटर का एक फुटप्रिंट है, और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्टामिनेंट्स होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स मानते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी ट्रीटेबिलिटी लिमिट 5 लाख ppm ऑफ COD है, 5 लाख ppm ऑफ COD, और वो 5 लाख ppm ऑफ COD हम 0 केमिकल से ट्रीट करते हैं, हम 0 बैक्टीरिया से ट्रीट करते हैं, हम 0 एरेशन से ट्रीट करते हैं। ना कोई एरेशन है, ना कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी नहीं है। वो फिल्टर भी लास्ट में सैंड फिल्टर और कार्बन फिल्टर इसलिए लगाते हैं कि GPCB के मैनुअल में लिखा है कि फाइनली वाटर हैज टू बी पास थ्रू दिस, अदरवाइज हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजीज इतनी सिंपल है कि इसका कॉपी करना बहुत आसान है, और हम चाहते हैं कि कॉपी होती रहे। टेक्सटाइल में कलर, COD, BOD, COD 3500 COD होती है डाइंग मिल्क की, एफ्लुएंट की, इसको हम बहुत बड़ा मानते हैं। कलर के कितने यूनिट्स है, तो इसको हम बहुत बड़ा मानते हैं। तो मैंने बोला कि जिसने मुझे धक्का मारा था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में जो पहला एफ्लुएंट आया, मैंने कभी सीवेज भी ट्रीट नहीं किया था, तब जो पहला एफ्लुएंट आया था उसकी 2 लाख COD थी।
और उसका कलर एक ऐसा था कि एक टैंकर उन्होंने गलती से तापी में डाल दिया, 22 भेड़ मर गई थी, 2 इंसान मर गए थे, और वो साल भर वो तापी लाल रही थी। और आज आप जब भी शुगर फैक्ट्री के पास से निकलते हो तो आप जिसको मोलासिस का स्मेल बोलते हो, मोलासिस कभी खुला नहीं होता है, मोलासिस की कभी स्मेल आप तक पहुंच ही नहीं सकती। वो जो स्मेल है वो एफ्लुएंट की स्मेल है। और आज जाके गूगल पे सर्च कर लेना, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ मोलासिस डिस्टिलरी स्पेंट वॉश, एक ही रिजल्ट शायद आएगा, और वो हम है। लेकिन जब वो किसानों की संगठित सेवा होती है तो उनको ट्रीटमेंट करने की जरूरत कम पड़ती है। डेयरी में पनीर बनाते हैं, वे बनाते हैं, 1 लाख से ऊपर सीओडी चली जाती है। ऑयल एंड ग्रीस उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। केमिकल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड का टोटल वेस्ट वाटर जो क्वांटम है वो मैक्सिमम केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल से, और जो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, वो अराउंड 45% रेवेन्यू कम्स फॉर द वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज ओनली फ्रॉम केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री। और कॉम्प्लेक्स है, रोज कुछ नया बनाते हैं, एपीआई वाले तो रोज कुछ नया बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स एफ्लुएंस होते हैं, और वो एक ही तरीके से वही एरेशन वही चलाते रहो। एरेशन से होता क्या है? मैं आपका एरेशन का आप अपनी इंडस्ट्रीज में एरेशन चलाते हो ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपनी हवा में 21% ऑक्सीजन है, राइट? उसको आप एरेशन में यूज कर रहे हो, 21% आप इंजेक्ट कर रहे हो, राइट? आप इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, राइट? अभी उसके साथ में 72% नाइट्रोजन भी है। आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो कि नाइट्रिफिकेशन कर रहे हो? और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से बहुत ज्यादा है। पावर इंडस्ट्री, अपने यहाँ सूजन का प्लांट जब नहीं लगा था ना, तब तापी का मोटा वराछा में टीडीएस लेवल था 300 से नीचे, पूरे वरियाव तक इट वाज लेस देन 300। अभी उसका टीडीएस लेवल है 1800। और पावर प्लांट एक बूंद भी पानी कंज्यूम नहीं करता खुद से, इवापोरेट हो जाता है, वो लॉस है, बट वही पानी अंदर घूम के वापस आ जाता है, इतना ही होता है। और तापी के ओरिजिन में बिफोर सुजन उनके फ्रेंच वेल से, जहां से उसके पहले आज भी टीडीएस लेवल 300 से नीचे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल, यहाँ सबसे ज्यादा टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल वाले शायद सबसे ज्यादा है, तो टेक्सटाइल की बात करेंगे। कलर निकालना एकदम इजी है, एकदम इंस्टेंट है, क्लोरीन डालने की जरूरत नहीं है। आप क्लोरीन डाल के कोई भी कलर वाली प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट करोगे, वो पानी आप प्रोसेस में यूज करोगे, और आपकी डाई, आप जो डाई यूज करते हो ऑलरेडी क्लोरीन बेस्ड है, और आपके जो मशीन है वो ऑलरेडी फेरस बेस्ड मशीन है। मशीन आपका बॉडी जो है फेरस है, फेरस के साथ में डाई ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा था, इसमें आपने क्लोरीनेटेड वाटर डाल दिया, आपने येलो कलर से फिनिशिंग लेना चाहा, आपका निकलेगा ब्राउन। फिर आप कलर टेक्स के फोन करोगे कि आपकी बेच खराब है। कलर टेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रोसेस का प्रॉब्लम है। वाटर जेट वालों ने इलेक्ट्रोकोगुलेशन लगाया था, 2-4 लोगों ने, वो आयरन की प्लेट से इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर रहे थे, सस्ता पड़ता होना चाहिए, फ्री में होना चाहिए। आयरन की प्लेट से कोगुलेशन करते हो, पता नहीं चलता, पानी ट्रीट हो गया, आपने रिसाइकल कर लिया, रीयूज कर लिया, बाद में जब वो प्रोसेसिंग में जाता है तब वहां पे येलो कलर पिगमेंट्स यूज करते हैं, तब जाके ब्राउन डॉट्स आते हैं। कलर टेक्स वाला पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, निकाल नहीं पाता कि हो कैसे रहा है। लेकिन जेनेसिस क्या था? आपके वाटर जेट पे लगा हुआ इलेक्ट्रोकोगुलेशन बेस्ड ऑन आयरन प्लेट्स। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्रीज अराउंड 19% एफ्लुएंट जनरेट करती है टोटल वॉल्यूम में, ग्लोबल वॉल्यूम में, और उसका इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन भी ये रहता है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज मिला के 35% रहता है। लेकिन टोटल वेस्ट वाटर जनरेशन जो ग्लोबल है, उसमें इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन खाली 20% है।
80% पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से नहीं आता है। नदी नाले सारे गंदे हो चुके खाली इंडस्ट्रीज की वजह से, लेकिन सारा पानी जो 3% पोर्टेबल वाटर था वो सारा जो कंटामिनेट हुआ है वो खाली इंडस्ट्रीज से नहीं हुआ। इंडस्ट्री इज नॉट द कल्प्रिट। कल्प्रिट हमारा एग्रीकल्चर है। 80% वाटर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, नोबडी नोज इट। सारे तालाब खराब हो गए, उसमें वाटर हायासिंथ जल पर्णी लगी हुई है just because of agriculture runoffs, not because of industrial waste water. अभी अच्छा लग रहा है कि आप कम पोल्यूट करते हो। तभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको फ्रेगमेंट कर करके अभी हम 100% पोल्यूशन करते थे। जीपीसीबी वाला तो यही मानते हैं ना कि क्या कर दिया तुमने। तो अभी हम 100% से 20% तक तो आ गए। अभी 20% तो करना बहुत इजी है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज का 20% पानी हमें चाहिए। जो कन्वेंशनल सिस्टम्स आप अभी तक जितनी सुनी देखी आपके सीटीपीस पे लगी हुई है, वो सारी कन्वेंशनल सिस्टम्स एरेशन बेस्ड है या कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन बेस्ड है, और ज्यादातर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट जो एंटीबायोटिक्स बनाता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप डालोगे, कैसे होगा? या तो आपका एंटीबायोटिक गलत है या आपका प्रोसेस गलत है। दूसरा, आपने एक सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाया जो 80 साल तक जिंदा रहने के लिए, आपका नायलॉन या आपका फैब्रिक 80 साल तक डिग्रेड ना होने के लिए, या 300 इयर्स प्लास्टिक जो भी है, प्लास्टिक बेस्ड है तो 500 इयर्स तक वो डिग्रेड नहीं होने वाला। उसको उसके ऊपर आपको कलर चढ़ाना है, और वो कलर आपने डाला है कि as long as the fabric lasts, that color also should last, right? ये मेंटालिटी है हमारी। अभी आप इसको बायोडिग्रेड कैसे करोगे? बायोडिग्रेडेबल होता तो आपका कलर कब का तीसरे वॉश में तो गया होता। तो ये नॉन डिग्रेडेबल है, उसमें आपने बायोडिग्रेडेबल कितना एरेशन करोगे? फिर नाला ढूंढोगे, नाला नहीं मिला तो ट्रैक्टर ढूंढोगे, ट्रैक्टर नहीं मिला तो ट्रक ढूंढोगे, टैंकर। मतलब अभी जो हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, मैं आपको एक सीरियस एग्जांपल बताऊंगा। और एक पूर्व मेंबर सेक्रेटरी थे, नाम नहीं होता है यहाँ पे, तो उनको एक आदत थी, बहुत बड़ा दरबार करते थे, सब जो भी जिनको क्लोजर आया बुलाते थे, डंडा मारते थे और सबके सामने ह्यूमिलिएट करते थे पूरा। मतलब आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको लगा कहाँ आ गया मैं। तो ऐसी हालत में आपको ह्यूमिलिएट करते थे। उनके साथ में मैं बैठा था, पूरा दरबार पूरा मैंने एक्नॉलेज किया। लास्ट में मैं बैठा था, तब उन्होंने कन्फेस किया। वो कन्फेशन समझने लायक है। उन्होंने बोला कि हम डरपोक लोग हैं। क्यों डरपोक है? हम जब भी कोई क्लोजर देने जाते हैं 10, 15, 20 लोग साथ में पुलिस को लेके जाते हैं। ऐसे ही क्लोजर देने नहीं चलेगा। और कोई भी आर हो जाता है तो या तो बोल के जाता है, कुछ भी मतलब पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ में जाता है, स्टाफ के साथ। ऐसे ही क्लोजर नहीं देते। क्यों? हम मॉनिटरिंग एजेंसी है, हमारे पास रिसर्च का भी बजट है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? कभी कोई इंडस्ट्री वाले ने ऐसे ही चेक में, ब्लैंक चेक पे साइन करके दे दिया, ले लो सर, और आप इसको ट्रीट करके दिखा दो। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो वो प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन दे सके। तो हम डरते हैं, इसलिए पूरा ग्रुप लेके जाते हैं। ये एक फैक्ट है। कल आप एक बार कोशिश करके देख लेना कि मैं खर्चा करने के लिए रेडी हूं, आप एक टेक्नोलॉजी लाते हैं। टेक्नोलॉजीज नहीं है। जितना स्लज आप बनाते हो, अगर ऑनेस्टली टीएसडीएफ साइट पे डिपॉजिट डंप करने जाओगे, क्या रेट चलता है डंप पे, यू नो इट। आपने जितना पॉलीइलेक्ट्रोलाइट डाला है उतना वो जेली बना रहेगा, डिस्पोज नहीं हो पाएगा, ड्राई ऑफ नहीं होगा, कैसे इसको डिस्पोज करोगे? तो एवरीथिंग इज ए कॉस्ट।
अभी हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। आपको एक क्लोजर आया, 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने आपका धंधा चौपट। कोरोना में हमने देख लिया क्या हो सकता है। 3 महीने के धंधा लिए चौपट, जिसका ऑर्डर लिया था वो वापस घूम के नहीं आएगा शायद, जिसके लिए हमने रॉ मटेरियल की कटा किया था वो रॉ मटेरियल का पैसा गया, पैसा तो देना पड़ेगा, मार्केट में खड़ा रहना है तो कैसे करोगे? तब वो मोमेंट पे हमें समझ में आता है इससे अच्छा कंप्लायंस कर, और कंप्लायंस करने की कोशिश करोगे तो सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। वो आपकी नीयत देखता है। आपका नाम अखबार में आ गया, सो एंड सो कंपनी को क्लोजर, नए नए संधि को कैसे बताओगे? बड़ा कारनामा किया है। ऑपरेशनल रिस्क रहते हैं, डेफिनेटली ऑपरेशनल रिस्क, बट ऑपरेशनल रिस्क का मिटिगेशन डेफिनेटली रहता है, और इसके लिए सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। जो कोई भी कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, इंस्टीट्यूशंस रेडी है, इंस्टीट्यूशंस आपको हेल्प करेंगे। मंत्रा है, अपने कॉलेजेस है, वो सबके पास पूरा स्टाफ है, दे विल हेल्प यू आउट। लेकिन आपने कभी मांगा नहीं है, मांगते तो डेफिनेटली मिलता। अपने साउथ गुजरात में जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ज्यादातर ऑडिटर्स है, और ज्यादातर के पास सबके लिए इसका सॉल्यूशन है। Let us go and ask them what we can do with our influence, and there is a solution. Pollution और solution में खाली फर्स्ट वर्ड ही बहुत चेंज करना है, और इतना हम नहीं करते कभी। साहब ने बताया था कार्बन क्रेडिट्स है, कार्बन क्रेडिट्स के अलावा ये अपना एफ्लुएंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म है जिससे पैसा मिलेगा, और बहुत इजी है। वाटर जेट जितना, मतलब आप फॉर एग्जांपल डेली 800 KL 1000 KL आप अगर जनरेट भी करते हो, मशीन्स लगाए, 400 मशीन है, 8 इंटू ये करके आप हिसाब लगाते हो तो लाख 2 लाख 5 लाख लीटर आप पानी एफ्लुएंट जनरेट करते हो, और एफ्लुएंट को ट्रीट करते हो, तो आपकी क्रेडिट इतनी जबरदस्त होगी कि आपको ये खर्चा कभी दिखेगा ही नहीं। एफ्लुएंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म में आपको खाली पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, और आप ही कमाओगे। जिनका कॉम्प्लेक्स एफ्लुएंस है, फार्मास्यूटिकल्स है, या बल्क मैन्युफैक्चरिंग है, या वेटरनरी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो आपको पैसा चुकाता ही रहेगा। जो डाइंग मिल अभी भी नहीं समझती, जो प्रोसेसिंग हाउस अभी भी नहीं समझते, वो आपको ही पैसा चुकाते रहेंगे। इससे बहुत सारी रिसोर्स रिकवरी होती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैंने आपको बताया था, जो 90 लीटर 99 रुपीज पर लीटर से भी महंगा है, 20 रुपया लीटर वाला है, तो वो वाटर रिसोर्स रिकवरी है। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें रिकवर होती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा सिस्टम बहुत वेरी सिंपल इन डिजाइन है, प्लग एंड प्ले है। आपके यहाँ इंस्टॉल किया, चालू किया, और फिर पहली मोमेंट पे, फर्स्ट मोमेंट पे पहला लीटर जो पानी ट्रीट होके निकलता है वो ट्रीट होके ही निकलता है। आपने जो भी एफ्लुएंट डाला वो 100% ट्रीट होता है। इसमें प्रैक्टिकली हम कोई केमिकल नहीं डालते। कभी कंडक्टिविटी के लिए नमक डालना पड़ता है, उससे ज्यादा कोई केमिकल हम नहीं डालते। और इसमें स्लज जनरेशन, आपका TSS कंटेंट है उतना ही स्लज जनरेशन, और आपका फुटप्रिंट है बहुत छोटा है। इट्स वेरी कॉम्पैक्ट प्लांट्स, आपकी टैंक के ऊपर ही लग जाएंगे, भाई बाहर कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको यहाँ से मैं अगर दिखा दूं तो ये आपका ओके, पहले जो 2 टैंक्स है उसमें वेस्ट वाटर आपका आया, फिर उसको
ऑप्शनल है, आपको उसको ओजोनेशन करना है नहीं करना है। सीधा फर्स्ट स्टेज में गया, वो इलेक्ट्रोकोएगुलेशन है, जीरो ड्रॉप इलेक्ट्रोकोएगुलेशन। इलेक्ट्रोकोएगुलेशन में मतलब सेपरेशन हो जाता है, पानी फट जाता है। जैसे दूध में आपने दो गर्म दूध में 2 बूंद नींबू के डाले, पानी पूरा फट जाता है, सारी चीजें मतलब सेपरेट हो जाती है। उसको फर्स्ट जो हमारी टैंक है सेटलमेंट टैंक, उसमें 3 घंटे तक सेटल करना है, बफर अरेंजमेंट होना चाहिए। तीसरी टैंक से जो पानी बाहर निकलेगा वो पानी ऑलमोस्ट गुड टू रीयूज है। 60 to 70% सीओडी उसकी कम हो गई है, बीओडी लगभग चली गई है। कलर थोड़ा शायद बच सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वो पानी हम सेकंड स्टेज जीरो ड्रॉप इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन में डालते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सूरत में बहुत सारे लोगों ने कोएगुलेशन तो डेफिनेटली ट्राई किया, अच्छा परफॉर्म भी किया था, लेकिन इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। और इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन की सारी खेल सारा इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर 10 एक्सपर्ट्स हैं, मतलब हर गली नुक्कड़ पे आपको इलेक्ट्रोकोएगुलेशन वाले जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 10 से ज्यादा एक्सपर्ट्स आपको इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन के नहीं मिलेंगे। और इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन में हमारा जो रिसर्च है उसमें हमने खाली एक ही टाइटेनियम की प्लेट के ऊपर हमने 2000 कोटिंग्स डिफाइन डिजाइन और मतलब उसकी पूरी डिजाइन बनाई हुई है। और सारे 2000 कोटिंग्स का मकसद अलग अलग है। इसमें आपको क्या एंड प्रोडक्ट बनानी है, आपका रॉ मटेरियल क्या है, उसके ऊपर पूरा आपका कोटिंग खाली चेंज होता है, बाकी सारी चीजें कॉमन रहती है। और आपके एफ्लुएंट पे फॉर एग्जांपल सल्फेट ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, आप हमें डेटा दोगे, उसके हिसाब से आपके मशीन के अंदर 12 प्लेट लगी है तो 12 का 12 कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है। सारे 12 प्लेट्स का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, हर एक प्लेट कुछ ना कुछ देख लेगी। तो यहाँ से जो बाहर निकला वो आपका ट्रीटेड वाटर हो गया, उसका सीओडी विद इन नॉर्म्स डेफिनेटली आ जाता है, उसी हिसाब से डिजाइन होता है पूरा सिस्टम। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संतोष के लिए हम सेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर लगा लेते हैं, बाकी इसका कोई प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं रहता है। आपका जो स्लज निकला वो उसको आप कॉम्पैक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। स्लज में कोई पॉलीइलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कोई जेल फॉर्मेशन नहीं होने वाला, वो इंस्टेंटली विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स वो अपने आप ड्राई आउट हो जाएगा। आपने कहीं रख दिया तो भी वो अपने आप क्रैक हो जाएगा, उसको आपको ड्राई आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बता दिया ये सारे पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रोकोगुलेशन में हम जब जाते हैं तो एक सैक्रिफिशियल एनोड रहता है, मोटी सी प्लेट होती है, धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, फिर पेपर जितनी पतली हो जाती है और वो पॉजिटिव आयंस छोड़ती रहती है पानी में। आपका जो भी कंटामिनेंट रहता है वो नेगेटिव आयन रहता है, उसके साथ में वो बाइंड करेगी, सेटल कर लेगी। आप जो भी पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा भी आप जो कोएगुलेंट्स यूज करते हो ज्यादातर या तो फेरस बेस रहते हैं या एल्यूमिनियम बेस रहते हैं, उसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट ही होता है। आप एलम भी डाल दो तो वो एल्यूमिनियम सॉल्ट है, तो यही सॉल्ट बनेगा। लेकिन आपने एलम डाला, आपको कितना एलम डालना है आपने कभी टेस्ट नहीं कर पाते। तो ये कैसे करता है काम, ये अपने आप कंडक्टिविटी बेस्ड है। आपका पानी में जितना भी कंडक्टिविटी, जितना कंटामिनेशन है उतना ही कंडक्टिविटी लेगा और उतना ही मेटल उसमें डिसिपेट होगा। और एक बार आपने मतलब ये फ्लो बंद कर दिया, अंदर भर के रखा है, तो धीरे धीरे आपका करंट नीचे डाउन हो जाएगा, तो आपका मेटल पिघलता नहीं रहता। तो जितना उसको जरूरत है एब्सोल्युटली उतना ही क्वांटम में मेटल डिसिपेट होता है। दैट इज द टेक्निक। दूसरा मैं आपको बता दूं, आप जितना एरेशन करने में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ना, उतने में से मेरे 2 सिस्टम चलते हैं। मेरा सेविंग सीधा सीधा पहला है जो वो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल सेविंग कोस्ट सेविंग पे है। आपके कन्वेंशनल एरेशन प्लांट से अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% हमारा पावर कंजम्पशन कम रहता है, 20 to 30%। और ओवरऑल कॉस्टिंग इंक्लूडिंग कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये सब आप कैलकुलेट करते हो तो भी हम कन्वेंशनल कॉस्ट से 15-20% डेफिनेटली कम रहेंगे। हमारी दूसरी बेनिफिट ये रहती है कि इसका कोई स्टार्टअप प्रोसीजर नहीं, कोई इसका एंड अप प्रोसीजर नहीं। आपको कोई एमएलसीसी या क्या जो भी बनाते हैं, गोबर डालते हो, ये डालते हो, वो डालते हो, कुछ नहीं करना है। आपने जब भी प्लग एंड प्ले किया, जब चालू किया तब वो काम करेगा, जब बंद कर दिया तब से वो ऑफ है।
दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन है, जो हमारा मतलब कोर है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो आपके लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है या साइक्लिक कंपाउंड्स है, वो साइक्लिक कंपाउंड्स को ये इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन तोड़ता है। और ये इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन के सामने मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब गर्व से बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन के सामने टिकने की कोई भी पॉल्यूटेंट की कैपेसिटी नहीं है। गुजराती में कहे ना जन्म तेनी जरा, मतलब जो जन्मा है वो कर जाएगा, तो जो पोल्यूटेंट है, जो कंटामिनेंट है, वो डेफिनेटली फट जाएगा। जिसकी जरा है वो ऑक्सीडाइज होके निकल जाएगा। आप एंटी एजिंग जो दवाई खाते हैं ना, वो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको ऑक्सीडेशन कम करना है। हम तो यहाँ ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ये जीरो साउंड प्रोसेस है। आप एरेशन करते हो कोई भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, आप एसटीपी के पास में म्युनिसिपल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के एसटीपी के बाजू में 10,000 स्क्वायर फुट का मान लो, आपको 10 लाख में भी मिलता है, लोगे। आप जो भी स्मेल का अनुभव करते हो ना, वो कृपा है एरेशन की। खाली इलेक्ट्रो कोएगुलेशन या इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन पे नहीं काम करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स पे काम करते हैं। उसमें हमारा ओजोनेशन मेरा कोर है, और ओजोन जनरेटर्स हम खुद बनाते हैं। इंडिया में सबसे बड़े ओजोन जनरेटर्स 1200 ग्राम्स पर आवर 1.2 केजी पर आवर ओजोन जनरेटर्स हम इन हाउस बनाते हैं। और ये मतलब ये ओजोन की सबसे बड़ी कैपेसिटी अब तक की है। इंडिविजुअल मशीन, लोग 6 किलो मशीन बोलते हैं, अंदर 5 मशीन होते हैं, तो 1.2 kg इज द हाईएस्ट कैपेसिटी। सारे एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसको एओपी, आज आप गूगल पे जाके सर्च करना, तो सारे एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हैं जो सारे पोल्यूशन को जड़ से खत्म कर पाते हैं। इसमें ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूवी, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ओजोनोलिसिस जिसको बोलते हैं, या फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस बोलते हो, आप जो भी बोलते हो, या कैटालाइटिक पेरोक्सीडेशन बोलते हो, ये सारे रिएक्शंस बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है, और खाली आप छोटे से मशीन से आप ये डेफिनेटली कर ही सकते हो। और ओजोन की खूबी है कि उसके सामने कुछ नहीं टिकता है, ओजोन किसी को नहीं छोड़ता। कोरोना की एक ही दवा थी, डे 1 पे दवा थी, ओजोन। लेकिन ओजोन को खाली थाईलैंड ने एक्सेप्ट किया, थाईलैंड बच गया, बाकी सब वैक्सीन की वेट करते थे। 1 to 1 मिलोगे तो वैक्सीन की स्टोरी भी बताऊं। ये नॉन सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन है, उसके सामने जो आया, जो जितना ज्यादा मजबूत नेता है कि हमसे ज्यादा कोई पोल्यूट नहीं कर सकता, उसको पहले जाके शूट करता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी ऑक्सीडेशन की ज्यादा है, वो अनसेचुरेटेड है, वो ज्यादा एफिनिटी करता है ओजोन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो पहले ओजोन उसके पास जाएगा, उसको पहले ट्रीट करेगा। तो मैंने जो बताया 5 लाख सीओडी, उसमें ओजोन का भी बहुत बड़ा रोल है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपको कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, खाली एक ओजोन भी लगा दिया तो आपका सीवेज ट्रीटमेंट डेफिनेटली 100% हो गया। आपका कलर रिमूव करना है, ओजोन से हो गया। आपके यहाँ पे आपका कोई एक प्रोसेस है जिसमें आपको डिसइंफेक्शन की जरूरत है, फूड प्रोसेस में हो, आप डिसइंफेक्शन की जरूरत है, छोटा सा ओजोन लगा। आपका डेयरी काउंटर है या आपका फूड काउंटर है, वो काउंटर के अंदर बेकरी केक्स बेचते हो, आप उस केक के काउंटर के अंदर एक छोटा सा ओजोन लगा दो, जो शाम को 7 बजे आपकी केक खट्टी हो जाती है ना, वो दूसरे दिन शाम को 7 बजे खट्टी नहीं हो पाएगी।
ओजोन के लिए आप खाली मेरा वेबसाइट सर्च करोगे, 90+ एप्लीकेशंस हैं। आप जो सोचो वो शायद वहां लिखा रहेगा। आप जो भी एफ्लुएंस के बारे में, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में, जो ऑटोमोबाइल प्रोसेस के बारे में, या जो पोल्ट्री प्रोसेस के बारे में, आप जो कुछ भी सोच लो, आपको टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए, आपको एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, आप सोचते जाओ। और 90+ एप्लीकेशंस है, और एक भी एप्लीकेशन कहीं पे भी रिपीट नहीं होती, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल सी टेक्नोलॉजी, ओजोनेशन, सो सिंपल। खाली उसमें क्वांटम का ध्यान रखना, बस कितना आप एब्जॉर्ब करोगे उसका हमें कॉन्शियसली ध्यान रखना। ये कोई भी ऐसे बड़ी होटल में सबसे पहले सुबह 11 बजे आप खाना खाने के लिए पहुंच गए गलती से, तो होटल में आप अंदर रह नहीं सकते, एसी चालू जस्ट किया है, वहां रहना बहुत मुश्किल है, बहुत फाउल स्मेल है। या ऐसे बड़े में जस्ट एयर रिसर्कुलेशन हो रही है, तो आप इन्फेक्शन को प्रोपोगेट कर रहे हो। आपने ये एचवीएसी सिस्टम में एक छोटा सा ओजोन डाल दिया होता, तो ये कंप्लीटली डिसइंफेक्टेड एयर आपको देता है। यहाँ पे इंटरनल इन्फेक्शन फैलने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। और ओजोन का दूसरा बेनिफिट ये है कि उसको कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, मतलब यहां तक ब्रेक करके छोड़ता है, उससे पहले छोड़ता ही नहीं। अब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड्स कितना हो, कितना कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। नाम तो बहुत बड़ा सुना होगा आपने, फेंटोन रिएक्शंस करते भी होंगे, इफेक्टिव कितना है क्वेश्चन है। फेंटोन बहुत पॉपुलर है, डाइज में, इंटरमीडिएट्स में, ये सब में फेंटोन्स बहुत प्रोपोगेट किया था, लेकिन फिर कर नहीं पाए। क्यों? कितना मसाला डालते रहना होता है, तो इतना मसाला डालने के बाद में होता क्या है, ये फेंटोन का पूरा चेन रिएक्शन है। और ये हमारे यूवी विद हाइड्रोजन या यूवी विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या यूवी विद ओजोन विद पेरोक्साइड का रिएक्शन है। और इसमें दोनों में, इवन फोटोफेंटोन में या ओजोन बेस्ड फेंटोन में या यूवी विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड विद ओजोन में, ये एंड रिजल्ट्स एक ही है, जीरो पोल्यूटेड। इसके अलावा मेरी इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि हमने कुछ बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस, बोटैनिकल सॉल्यूशंस पे भी काम किया है। तो मैं आपको वाटर जेट का जो मैं आपको बता रहा था, 2 बूंद जिंदगी के डाले आपने वाटर जेट के एफ्लुएंट में, और एफ्लुएंट में सब अलग, वो नीम के तेल से बना हुआ दवाई है। नीम के तेल से वी एक्सट्रैक्टेड 40 प्रोडक्ट्स, एक ही नीम के तेल से वी एक्सट्रैक्टेड 40 प्रोडक्ट्स, और वो 40 के 40 प्रोडक्ट की हर एक की प्रॉपर्टी अलग है। कोई कोएगुलेंट है, कोई फ्लोक्युलेंट है, कोई डिसइंफेक्टेंट है, बहुत सारी चीजें। तो जिससे हम हमारे पूर्वज दातुन किया करते थे, दैट इज सो कॉस्टली प्रोडक्ट नाउ, नीम ऑयल। और नीम ऑयल से ही ये सारी ज्यादातर प्रोडक्ट्स बनी हुई है, उसमें कोई भी केमिकल हमने नहीं डाला। तो जीरो डॉट नीम ऑयल जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट दिख रहा है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए है। जस्ट 40 to 50 ppm 1000 लीटर में डालना है, 50 ml से कम, मिला देना है 2 मिनट के लिए, छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद में आपके कॉन्फिडेंस के लिए छन्नी से छान के पी लेना है। It is disinfected, it is zero bacteria, 100%. It is 100% odorless, it is 100% tasteless. कोई इसमें टेस्ट नहीं है होता है। आपका ये कूलिंग टावर्स लगे, परेशान हो गए हो, कितने केमिकल्स, हर महीने नया बैक्टीरिया के लिए आप नया केमिकल डालते हो। एक केमिकल 3 महीना नहीं चलता है, 3 महीने के बाद में आपको केमिकल चेंज करना पड़ता है, कोड एक नंबर के साथ में आता है। ये हमारा CMI है, CMI का वर्ड अर्थ है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन।
कोई भी पानी में एक बूंद डाल के देख लेना, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन पूरा नीचे सेटल हो जाएगा, उसका टीडीएस कम हो जाएगा। टीडीएस कम करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है स्केलिंग को कंप्लीटली प्रिवेंट करना। और फिर वो पानी आप कोई भी कूलिंग टावर में चला दो, जो स्केल बनी हुई है वो भी धीरे धीरे पिघल के निकल जाएगी और नई स्केल डेफिनेटली नहीं होगी। और इसके साथ में हमारा नाशक प्रोडक्ट है, वो 100% डिसइंफेक्टेंट है। आप इसको स्विमिंग पूल में डाल सकते हो, आप इसको ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डाल सकते हो। ये नॉन एक्सेप्ट है, अगेन विटामिन नॉन एक्सेप्ट, और 100% डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। क्लोरीन आपको रोज डालना पड़ता है स्विमिंग पूल, ये 15 दिन में एक बार डालना पड़ता है। सैनिटा भी सेम पर्पस है, सैनिटेशन के। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप टेक्सटाइल एफ्लुएंट, कलर एफ्लुएंट है, आप कौन सी डाई यूज करते हो, रिएक्टिव डाई यूज करते हो या क्लोरीन पे, मतलब ये डाई यूज करते हो, तो उसके हिसाब से दो सॉल्यूशंस है। आपने रिएक्ट करके मेरा प्रोडक्ट है वो आपने डाल दिया रिएक्टिव डाइज के लिए, वो इंस्टेंटली आपको एटलीस्ट 90% कलर निकाल के दे देगा। कलर नहीं, खाली सेपरेशन हो जाएगा पोल्यूटेड का, और इट कैन बी जस्ट फिल्टर्ड आउट। कोई भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हम लगाते हैं तो वो कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, आपको जो डिजाइन रिजल्ट है वो बिना मतलब इतना क्लोज ऑब्जर्व किए बिना चलता रहना चाहिए। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर बार आपको उसको मॉनिटर करने नहीं जाना है, आपके ऑपरेटर पीएचडी नहीं होते। तो हमें ऐसे सिंपल सिस्टम डिजाइन करना है। हमारा वाटर रिकवरी 90 to 98% तक जा सकता है, तो एटलीस्ट वो आप डिस्चार्ज के बहुत नजदीक पहुंच गए। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, जो आउटपुट है वो अगर आप रीयूज करते हो तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपको कोई काम का नहीं है, बट अगर आप उसको, आपके पास अगर डिस्चार्ज का कोई प्रोविजंस है तो डेफिनेटली वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में आप कंप्लायंट कर सकते हो। और आप अगर रीयूज भी करते हो वो पानी को कोई भी एप्लीकेशंस को इंटरनली, तो वो डेफिनेटली हो पाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई भी केस हो, जैसे डिस्टिलरी मोलासिस डिस्टिलरी स्पेंटोस 2 लाख सीओडी, या आपका जो रेजिन्स आप यूज करते हो प्रोसेस में, वो रेजिन बनाने वाला जो एफ्लुएंट होता है 8 लाख तक सीओडी जाती है। ये सारे एफ्लुएंट्स, अगर रेयन बनाते हो, रेयन का डाइंग करते हो, उसका जो कॉम्प्लेक्स एफ्लुएंट है, आप डाइंग मिल का एफ्लुएंट तो बहुत सिंपल है, उसका तो मैं कंसिडरेशन नहीं लेता हूँ डाइंग मिल का। और आपका वाटर जेट का, आप जिसको बहुत कॉम्प्लेक्स मानते हो, वाटर जेट का एफ्लुएंट है क्या? आपके धागे के ऊपर जो रेयन के साथ में जो ऑयल जाता है वही ऑयल है। आप हाई स्पीड पे स्पिनिंग किया, आपका वो बन गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर, वो मिल्क जैसा मिक्सचर बन गया। इसको आपको फाड़ना है, सिंपल है, इतना ही तो सिंपल है। केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल रोज नया प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन रोज नया एरेशन आप नहीं डाल सकते, रोज नया बैक्टीरिया आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। ये हमारी सिस्टम है, इसमें कोई बैक्टीरिया डालना नहीं है। हमने, आपने बोला कि मेरा 3 लाख तक सीओडी है, तो मैं 3 लाख तक की सिस्टम आपको डिजाइन करके दूंगा, और डिजाइन करने से पहले पूरा ट्रायल का पूरा स्कीम होगा, और लैब स्केल से शुरू करके पायलट स्केल के आपके प्रीमाइसिस में ट्रायल टेस्टिंग होगा, आपके बंदे उसको ऑपरेट करेंगे मेरे मशीन्स को। नीचे जो दिखता है मेरा कंटेनराइज ट्रायल प्लांट है, पायलट स्केल प्लांट है, वो आपकी साइट पे आके आपको एफ्लुएंट करता है। ये अंदर का, ये कंटेनराइज प्लांट के अंदर का व्यू है, और इसमें 2 लाख सीओडी का एफ्लुएंट अंदर जाता था और सफेद पानी बाहर निकलता था, डार्क ब्राउन पानी जाता था, सफेद पानी बाहर निकलता था। और ये सफेद पानी बाहर निकालने के लिए मेरे पास तब जाके शेड्यूल एवियो थी, फिर मैं मारुति 800 पे आ गया था, मेरा घर गिवी हो गया था। लेकिन छोड़ूंगा नहीं साला। इंडस्ट्रीज ने बहुत नवाजा है हमें, 4 गोल्ड मेडल दिया। ये जिसकी हम बात कर रहे थे, ये
आपका है वोट इज इट। विदिन 20 मिनट्स ये पानी मिलता है। सेटलमेंट होने के लिए 20 मिनट लगता है, वही टाइम, और कोई टाइम नहीं। डेयरी का एफ्लुएंट दिखता सादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये हमारी खुराक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कितना भी कॉम्प्लेक्स हो आप तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, आपके साथ में काम करेंगे और उसको हम सोल्व करके देंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो स्टेजेस में सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, बट सोल्व जरूर करेंगे। और सोल्व करने की हमारी 3-4 थियरी है। पहले तो इंडस्ट्रीज को एफोर्डेबल होना चाहिए। एफोर्डेबल होगा तभी आप एडॉप्ट करोगे, एफोर्डेबल नहीं होगा तो आप एडॉप्ट नहीं करोगे। तो एफोर्डेबल सोल्यूशन होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आप जितना भी पैसा मुझे देते हो तो आपको उतना ही संतोष मिलना चाहिए। और तीसरा कि आपके सारे कंप्लायंसेस वहां से खत्म होने चाहिए, वो कंप्लायंसेस की स्टोरी फिर नहीं चलनी चाहिए। वहां से शुरू होता है और वहीं से एंड होता है। अब इंटरेस्टिंग बात है, आप कोई भी प्लांट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड आप लेते हो तो उसका ROI 400 दिन से ज्यादा नहीं होता है कभी, 400 days मैक्सिमम। आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलाते हो लेकिन आपको पता नहीं है। मैं आपको अभी इकोनॉमिक समझा देता हूँ, मेंबरशिप लेने की और अपना एफ्लुएंट खुद ट्रीट करने की। आपने एक चैम्बर 100 CTP से लिया, आपने एक चैम्बर लिया, 3 चैम्बर आपको चाहिए, 3 चैम्बर नहीं मिले 2 चैम्बर ले, 2 चैम्बर के लिए आपने X अमाउंट आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, आपने बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, आप जिसको इंडस्ट्री बेचोगे वो जाके उसको टेक ओवर करेगा, बट वो आपको ट्रांसफरेबल है बट रिफंडेबल नहीं है, आपको रिफंड नहीं करेगा कभी भी, वो ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर आपका पूरा इंडस्ट्री या सेगमेंट ही ठप हो गया फिर किसको आप ट्रांसफर करोगे? रिस्क है। जो भी जितने भी लाख आपने कमा के उसको या लोन लेके भी उसको दिया उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है? उतने पैसे में तो पैसा देने के बाद में क्या ह्यूमिलेशन होता है उनका, चपरासी आके रात को 12 बजे डंडा मार के जाता है, वो सब हम बहुत डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम खाली पैसे का ही डिस्कशन कर रहे हैं। उतने पैसे में मान लेते हैं, उतने ही पैसे में मैं आपको एक प्लान देता हूँ, राइट? उतने ही पैसे, सेम मनी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या इवन आप अपने घर में RO लगाते हो ना, 15,000 रुपए का RO, उसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन अलाउड है, लोग नहीं जानते। GST आने के बाद में डेप्रिसिएशन has been divided into slabs, मैक्सिमम जो स्लैब है 40% का है, वो 40% में आप देख लेना, वो चैप्टर में खाली वेस्ट वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट है अभी के लिए। मतलब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो है। सोलर पावर 85% में आता है, 100% में नहीं आता, 40% में नहीं आता। तो ये 40% मतलब 100%, 2.5 years में आपका सारा पैसा जो ब्लैक डाला था राइट हो गया डेप्रिसिएशन के साथ। पैसा आपके पास रहा, एसेट आपके पास रहा, एसेट आपने बैंक में डाल दिया और वो एसेट्स को आप एनकैश कर रहे हैं। ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस है वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन कैपिटल आपका 2.5 साल में नील हो गया, कैपिटल आपका एसेट बन गया, 2.5 साल में नील हो गया। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो आपके खर्चे में जाता है, इतना आपको इनकम टैक्स कम देना है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब तक तो 0 हो गए,
अभी जो वाटर क्रेडिट्स कम आए, कार्बन क्रेडिट्स में वाटर क्रेडिट नया आ चुका है ऑलरेडी, और इंडिया के भी पोर्टल से जो वाटर क्रेडिट देते हैं, अभी जो वाटर क्रेडिट है उसका रेट अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज है पर क्रेडिट। क्रेडिट के बहुत सारे क्राइटेरिया, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में वो 1000 लीटर को एक यूनिट मिलता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स में वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो ज्यादा प्राइसेस में। वाटर क्रेडिट है, ये सूरत का खुद का अभी जो शुरू हुआ है वो एफ्लुएंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, उसको हमने ले लिया, उसका बेनिफिट लिया, ये बेनिफिट लिया, और उससे भी बड़ा बेनिफिट है कि आपके यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी विजिट करेगी, लेकिन 2 लोगों को लेके आएगी, देख ले भाई कैसे चलाता है। फिर ऐसे सेमिनार में आपको ऐसे बोलने के लिए बुलाएगी। चार 400 दिन से ज्यादा कोई भी सिस्टम था, हमारा ROI उससे कम ही रहेगा। मिनिमम मेंटेनेंस है, एनर्जी एफिशिएंट है, बहुत सारे बेनिफिट्स ही है। ये सारे ROI के कैलकुलेशंस है, इंडस्ट्रियल वाटर ROI के, मतलब 300 डेज से ज्यादा इतने कॉम्प्लेक्स प्लांट्स पे भी नहीं करता है। मटेरियल रिकवरी होगी, इसमें से कुछ भी जो भी वैल्यूएबल चीजें निकलती है फर्टिलाइजर के रूप में या बहुत सारी रिसाइकलिंग में, बहुत सारी चीजें इसमें रीयूज कर सकते हैं। आपके सारे इंडेक्स लिखे हुए हैं, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, और आप नेशन को भी कंट्रीब्यूट करते हो। सारे डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स, चाहे सीपीसीबी के हो या जीपीसीबी के हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, ISO स्टैंडर्ड्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है, थर्ड पार्टी ऑडिट का होता है, या आपका कोई भी मैकेनिज्म है उसमें आपका कंप्लायंसेस 100% एश्योर्ड है। ये सारे स्टैंडर्ड्स नॉर्मली या फार्मास्यूटिकल में हो तो FDA, US FDA, आपको जो भी कंप्लायंसेस करने हैं वो कंप्लायंसेस एश्योर्ड है। और सारे सर्टिफिकेट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। आप किसी को बोलोगे कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, फिर हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट ये सर्टिफाइड है ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो डेफिनेटली एक इंप्रेशन बनती है। जैसे मैं बता रहा था, वाटर ट्रेडिंग सूरत का इंटरनल फर्स्ट ट्रायल बेसिस पे शुरू हो चुका है, और ऐसे ग्लोबल भी शुरू होंगे। ये सूरत का एमिशन ट्रेडिंग वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ 2019 में, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने इससे कमाया है। और एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इजी सॉल्यूशंस है। आपको एक सिंपल सा जस्ट 1 मिनट में समझा देता हूं। हमारे जिस महानुभाव की मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक यहाँ पे इंसुलेशन प्लांट लगाया था, उसमें से मर्केप्टन रिलीज होता था। मर्केप्टन क्या है? आपका जो गैस LPG लीक होता है उसमें जो स्मेल आती है वो मर्केप्टन की स्मेल है, LPG की स्मेल नहीं है। मर्केप्टन सल्फोनेटेड कंपाउंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और वो उसकी मतलब जो वेपर है वो 3 किलोमीटर दूर जाके बलेश्वर में सेटल होती थी। बलेश्वर में लोग बाहर सोते थे, उनके शरीर पे रैश आना चालू किया, इनके यहाँ पे पूरा एजिटेशन हो गया। अल्टीमेटली दे हैड टू क्लोज इट, बट उनका 40,000 CFM emission में just 1% was the hydrocarbon and this mercaptan compound, और उसका टेम्परेचर 400 डिग्री प्लस था। उसमें हमने उनको ओजोनेशन का एक सोल्यूशन दिया, और वो सोल्यूशन देने के बाद में दैट mercaptan was completely eliminated। और टेक्निकल मैटर ये है कि ओजोन अपने आप को 42 डिग्री पे डिग्रेड कर लेता है। हमने सिलेक्टिव रिएक्शन किया था 200 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओजोन का, और वो 100% सक्सेसफुल था।
हिंदुस्तान की जितनी भी स्कीम्स आप रोज सुनते हो ना सांप के फोटो के साथ में, वो कोई ना कोई एसडीजी गोल के साथ में जुड़ी हुई है। पूरे ग्लोब में जितनी भी स्कीम्स चल रही है, कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम, वो सारे एसडीजीज के साथ में लिंक्ड अप है। हमारे कंट्री के गोल से वो गोल्स हमें फुलफिल करने हैं, अचीव करने, तब जाके हमें आगे का फंडिंग मिलेगा, आगे का कोऑपरेशन मिलेगा, आगे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, वरना वो एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल होगा। दूसरा आपको एक न्यूज बता दूं, 2 साल के अंदर सूरत एज ए सिटी कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, 0 कार्बन सिटी बनने वाला है। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दवाई आने वाली है, आप पोल्यूट नहीं कर पाओगे, आप कंप्लायंस करो, वरना सूरत की बाउंड्री छोड़ दो। सारी क्लीन टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप्स के साथ में बनी हुई है और इंटरनेशनली पब्लिश्ड भी है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मेरे खुद के भी पब्लिश हुए हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स, डॉक्यूमेंट सब मिलेंगे। हम जो भी करते हैं वो सारा मतलब कोई भी ऐसे आंख के पीछे जादू का कोई खेल नहीं है, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी। सिंपल प्रोसेस है, 1 to 1 डिस्कस करेंगे आपके एविडेंस को। आपको ट्रीटेबिलिटी चाहिए तो ट्रीटेबिलिटी आपको लाइव दिखा देंगे, आपको ट्रीटेबिलिटी एनालिसिस करनी है तो मंत्रा लैब है या इंस्टीट्यूशंस के लैब है, गो देयर, गेट इट टेस्टेड। मेरे पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी खुद की नहीं है, मैं अपनी कोई लैब रखता ही नहीं, मेरे इक्विपमेंट्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। और फिर आपको पायलट चाहिए, पायलट टेस्टिंग आपकी प्रीमाइसेस में होगा, आपका एफ्लुएंट कॉम्प्लेक्स है तो वरना पायलट की जरूरत नहीं। You can directly from lab scale, you can directly go to master scale. It's very easy. Thank you for your patient hearing. Thank you very much, dear sir, for your insightful thoughts for the presentation on this wastewater management. Now I'm opening the floor for the question answer session. सर मशीन की कॉस्ट कितनी है? So yes, anyone having the question, please ask one by one. You just raise the hand with your question. मशीन की कॉस्ट कितनी है? So, सारे टेलर मेड सॉल्यूशन आपके नाप का ही शर्ट सिलाएंगे और मेंटेनेंस आपके कन्वेंशनल प्लान से कम। तो मशीन वाला भी जरूरत नहीं है, आप बिना मशीन वाले भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप वाटर सेट चलाते हो, आपने प्रीवियसली 6 डजन पंप लगा रखे हैं, आप उसी सिस्टम को मुझे दे दो, आपके डजन पंप को चालू करके दे दो, मैं आपको वहीं पे आपके एफएम को ट्रीट करके दे दूँ, मुझसे आप कोई कुछ भी मत खरीदना। Okay, anyone else? Next. Yes, sir. Hello, sir. Actually, I wanted to ask, जैसे कि आपने बताया dispersed dyes में you have a very good expertise, but Surat being a man-made fabric industry, यहाँ पे आपने reactive का बताया था, यहाँ पे dispersed ज़्यादा use होते हैं. So what about those? क्योंकि that is the biggest problem for CETPs today. We have a solution equally for dispersed dyes also. Both the products. हम डेनिम जो रिएक्टिव डाइज यूज करता है, डेनिम इंडस्ट्री जितने भी सीटीपीस में जाता है वो डेनिम इंडस्ट्री को ही कल्प्रिट मानते हैं कि उनकी वजह से ये मेरा सीटीपी नहीं चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी टू ट्रीट इट। Any next question? वाटर जेट के लिए बेसिकली जो है उसमें ज्यादा टेलरमेंट नहीं होता, सभी का सेम ही है, इनपुट ये चाहिए टीडीएस, आउटपुट ट्रीटमेंट क्या चाहिए और वापस अगर यूज करना तो एक समझ लो 48 मशीन का यूनिट है तो उसमें क्या कॉस्ट लगेगी फॉर रिसाइकलिंग यूज करने के बाद और जगह कितनी अप्रोक्सीमेट। सो जितने वाटर जेट यूनिट्स पहले बने हुए उनके पास नीचे अंडरग्राउंड में 2 टैंक है, गेट के बिल्कुल एंड के पास वो 2 टैंक सफिशिएंट है। खाली एक हमें छोटा सा पहले एक छोटा आपका जो जहाँ पे आपने स्ट्रेनर्स लगाया है वो स्ट्रेनर में ही पूरी ट्रीटमेंट होगी
और फिर वो पानी आप जो 2 टैंक्स है, हो सकता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और कंपार्टमेंट बना के दो, फिर वो कंपार्टमेंट्स में से लास्ट कंपार्टमेंट में से आप पानी सीधा उठा लेना। और मतलब 48 मशीन के लिए आपका, अगर आपके पास डोजिंग पंप्स लगे हैं तो आपको मुझसे खाली रिएजेंट लेना है, और आपका डोजिंग पंप नहीं लगा है तो माइनर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे छोटे छोटे। आपका जो गटर लाइन बना है उसमें से आपको जिगजैग बना दो, पहले पंप पे हम डोजिंग करेंगे, जिगजैग से पास होते होते जस्ट आपकी टंकी तक जाएगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल नया यूनिट है, तो लेस देन 5 लाख 5x को आपका 48 मशीन इनटू 3000 लीटर्स पर डे, 5x। लेस देन 5 लाख। तो उसमें फिर हमारा इनपुट होगा ये अपना बोरिंग वाटर पानी, तो फिर आउटपुट ये रिसाइक्लेबल है। एब्सोल्युटली। और टॉप अप कितना चाहिए आपका जो स्लज के साथ में जितना पानी जाता है उतना ही टॉप अप करना है, अप्रोक्सीमेटली? 15-20%। और इसमें फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्विवेलेंट टू एनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, आपको, वो वेस्ट मैं हमारे आपको नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब सबसे कम कॉस्ट एफ्लुएंस में सीवेज की लगती है, अब ये बहुत मिनिमल कॉस्ट है। किलोलीटर में मैं आपको डेफिनेटली वर्कआउट कर लूंगा, वेगली भी बता। वेगली अराउंड 20 रुपीस पर के। सर बेसिकली ये वाटर जेट पहले रेड कैटेगरी में था, और लाइक संजीव कुमार वाज मेंबर सेक्रेटरी जीपीसीबी में। तो हमें एज अ लेमैन हमें इतना समझ में आता था कि भाई जो हम सुबह नहाने के टाइम जो पानी यूज करते थे, फिर साबुन शैम्पू यूज करते थे, तो वो जो डिटर्जेंट वाला पानी है और हमारा जो वाटर जेट का आउटपुट है, आइदर इट इज इक्वल हार्मफुल और लेस हार्मफुल। और अगर डिटर्जेंट वाला पानी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नॉर्मल इसमें छोड़ सकते हैं तो इसको क्यों नहीं? वो पहले रेड कैटेगरी में था, तो यही आर्ग्यूमेंट लेके हम लोग गए थे और फिर उसको ऑरेंज में लाए। तो अभी इसका पोल्यूशन लोड कितना है आपके हिसाब से? वाटर जेट का जो पोल्यूशन लोड है वो कितना होता है? पहले तो मैं आपके कन्विक्शन पावर को एप्रिशिएट करूंगा कि आपने आईएएस को भी घुमा दिया। मैं वो दोनों सैंपल लेके गया था। ऑनेस्टली आई रियली अप्रिशिएट, आपका कन्विक्शन पावर बहुत होता है, आपकी पूरी इंडस्ट्री का कन्विक्शन पावर होता है। इट्स नॉट सो सिंपल। ये आपके वाटर जेट की वजह से साइन में केले बनना बंद हो गए, साइन में शुगर केन बनना बंद हो गया, साइन का वाटर टेबल 1200 फीट से नीचे चला गया। ये सारी वाटर जेट की कृपा है। वाटर जेट में जो ऑयल, रेन ऑयल आप यूज करते हो, मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल का होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ है। इट्स नॉट एज गुड एज ए सॉफ्ट सॉल्यूशन। सोप में कोई मतलब ऑयल से बनता है, बट आपका क्वांटम कितना है, इसमें फ्री ऑयल रेडिकल कुछ भी नहीं है। आप फ्री ऑयल रेडिकल आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलता है, बट होमोजेनियस ऑयल जो कंटेंट है वो आपका कोई टेस्ट नहीं है इसके लिए सर, उसका कोई टेस्ट नहीं है, तो वो कहीं पकड़ में नहीं आता। सीओडी दिखता नहीं है क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट है, ऑक्सीडाइजेबल कंपोनेंट नहीं है, मिनरल ऑयल। तो दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी। आपको आप दिखा सकते हो कि ये 1200 सीओडी का ही है, उसका सीओडी वैल्यू कुछ भी नहीं है। स्टार्च आता है तब सीओडी बढ़ता है, वरना सीओडी नहीं बढ़ता। जब आपकी प्रोसेस में स्टार्च आया तो बढ़ता है, अदरवाइज नहीं बढ़ता। तो दिखाने के लिए आप कन्विंस कर पाए आईएएस ऑफिसर को, तो आई रियली अप्रिशिएट। इट्स नॉट दैट सिंपल। सर ये पानी मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा सीटीपी लगा है, आप उसका आउटपुट देख लेना, 1 लीटर पानी साफ नहीं जाता। एक्चुअली आप बताइए, आप क्योंकि हम तो ले मैंने आपको बता दिया, केले खत्म हो गए, पानी का जल स्तर नीचे चला गया, इससे मतलब यही पोल्यूशन नापने का तरीका है अभी। और जितने भी एग्जिस्टिंग वाटर जेट यूनिट्स है जिन्होंने सीटीपी का कनेक्शन लिया हुआ है, जो वेस्ट वाटर वो देते हैं, तो उनको भी कहीं कहीं सीटीपी से सीओडी का चार्ज आता है। तो वो सीओडी कम करने के लिए कोई केमिकल ऑपरेट कर सकता है, जो बेसिकली जो ऑयल और ग्रीस है जो हमारा, इसी की वजह से बढ़ रहा है, ऐसा जीपीसीबी भी बोलते हैं।
ठीक है तो कैसे इसका क्या रास्ता है? सर, मैंने वही इकोनॉमिक समझाया। आप एक चैम्बर का आप चैम्बर खरीदते हैं, जी सर, आप चैम्बर खरीदते हैं, वो चैम्बर का चार्ज दिया, फिर एक यूटिलिटी चार्ज दोगे आप, हमारा में पर मशीन होता है वाटर जेट में, राइट, वो यूटिलिटी चार्ज पर मशीन 2400 लीटर्स पर मशीन पर डे हाँ, वो पर मंथ ले लेते हैं। नहीं तो वो जो हमें सेपरेट करना है कितना एक चैम्बर का चार्ज क्या है आपकी सिटी में? नहीं, सीडीपी का हमारा वाटर जेट में चेम्बर पे नहीं होता है, पर मशीन होता है, दैट इज अराउंड 40-45,000 रुपीज पर मशीन। और जो ट्रीटमेंट चार्ज है दैट इज अराउंड 1800 to 2000 रुपीज पर मंथ पर मशीन, मतलब कलेक्टिंग द वेट वाटर। 45,000 पर मशीन पर मंथ या पर वन टाइम चार्ज है। और मेंबरशिप होगा 10 मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10, 12,000, 15,000, 50,000 बनते हैं। ग्रेट, आप अपना ट्रीटमेंट लगाओगे इससे सस्ते में पड़ेगा। नहीं, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग जो वाटर जेट यूनिट है जिन्होंने सीटीपी का कनेक्शन लेके रखा है और जिनको ऑयल और ग्रीस की वजह से सीओडी के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उनका सोल्यूशन क्या है? डेफिनेटली आपका सीओडी तो पानी रिसाइक्लेबल बना रहे हैं, तो सीओडी तो निकल ही गया, सीओडी आपका सेपरेट आउट हो गया। जो सीओडी में नहीं, वो तो अगर आपका लगाएंगे रिसाइकल करेंगे तो रिसाइकल अगर कर दिया आपने तो आपके ऊपर सीटीपी का लोड का कोई चार्ज, वो तो फिर सीटीपी का कनेक्शन नहीं निकल जाएगा, लेकिन तब तक समझ लो आपका प्लांट भी क्या, नए जो आएंगे वो चलो आपका प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सीटीपी का मेंबरशिप लेके रखा है वो मेंबरशिप भी आप जैसे बताया कि इट इज नॉट सेलेबल, इट इज ओनली ट्रांसफरेबल। यस, तो वो जो इन्होंने उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट निकालना डिफिकल्ट है इमीडिएटली। देयर आर सॉल्यूशंस फॉर इट, एकदम सिंपल सा है। एक आपको खाली मतलब मिक्सिंग मशीन चाहिए, और ये स्लज डिस्पोजल का क्या होगा सोल्यूशन अगर आपका पूरा लगा देते हैं? आपका जो स्लज बनता है वो फ्लेमेबल स्लज है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, तो ये ब्रिक्स वगैरह जो फैक्ट्रीज है वो सेल करते एज अ फूड है, हैं। तो वी डिड नॉट हैव हमें कोई मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ेगी। लीगल डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। और जैसे आपने ये बताया कि वाटर का भी ट्रेडिंग होता है, यस, तो उसका कुछ डिटेलिंग मतलब बाद में मिलकर जान सकते एज अ इंडस्ट्री जाना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री क्लस्टर बन के जाना चाहिए, क्लस्टर बन के। बहुत पैसा है। ओके, थैंक यू। Yeah. Any more questions? जैसे मेरा प्लान है, मैंने मेरा वाटर डिस्चार्ज किया, मैंने ट्रीट कर दिया, तो उसका जो मुझे क्रेडिट का भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मुझे मिलेगा और उनको मिलेगा। जो सूरत की एफएम ट्रेडिंग स्कीम है उसमें इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री को मिलेगा, और जो वाटर क्रेडिट है उसका ऑडिट कॉम्प्लेक्स है, तो क्लस्टर बन के जाते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है। एफएम ट्रेडिंग यहाँ पे जो अभी जो पायलट स्केल पे शुरू हुआ है तो नेशनल पॉलिसी बनने वाला है। एमिशन ट्रेडिंग हमने जो 2019 में किया वो नेशनल पॉलिसी बन चुका है, तो ये अभी नेशनल पॉलिसी बनने के लिए हम एक पायलट ट्रेडिंग कर रहे हैं सब पोल्यूशन अथॉरिटीज, और ये अभी नेशनल पॉलिसी बनने वाला है। और उसमें जो भी अभी इंसेंटिव्स दे रखे हैं वो लोकल मैकेनिज्म है, अपना खुद का कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया का बी के माध्यम से आने वाला है, तो वो अपने खुद के पोर्टल पे हम ट्रेडिंग करेंगे, हमारा इंटरनल ट्रेडिंग होगा। हमारा इंटरनल ट्रेडिंग अभी यूरोप से कर रहे थे, वो यूरोप से करने की अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली एज इंडस्ट्री में हूँ आपको मैं बता दूं कि अभी जिनको हम कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं सीडीएम, वो कोलैप्स होने वाला है, ये टिकने वाला नहीं है, इसका कोई लाइफ बचा नहीं है। और ये अभी जो $15 पर क्रेडिट ये वो जो चलता था वो सब गया, यूएस पहले से ही उसमें से भाग चुका है, यूरोप के पास इतने पैसे ही नहीं है कि आपको इतना फेवर कर पाएंगे, तो अभी लाओगे कहाँ से वो क्रेडिट के पैसे? जितना ऑडिटर कमाता है ना उतना आपके पास बचता नहीं है।
ऑडिटर अपफ्रंट फीस लेता है, पार्टनरशिप लेता है, ये लेता है, वो लेता है, फिर में आपके हाथ में खाली सर्टिफिकेट आता है, पैसा नहीं आता। ये अपना इंडिया का जो पी के थ्रू जो मैकेनिज्म बन रहा है, वो अपना इंटरनल ट्रेड होगा, वो $15 नहीं होगा, ₹15 होने दो, पर वो ₹15 रियल ₹15, उसमें ऑडिटर का इतना कोई रेगुलराइज होने वाला है ऑडिटर फी, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके कार्तिक सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Sir, when we are dealing with the paper and pulp industry, there is a refractive COD. So, which treatment will be useful among the इलेक्ट्रोकोगुलेशन फॉलोड बाय एनी ऑक्सीडेशन। जो भी रिफ्रैक्टिव सीओडीज है उसको ओजोन भी तोड़ देता है, और इसको इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन तो इसका अल्टीमेट इलाज है। It's a big problem. Yes, sir. pulp and paper industry particularly? Yes. वेरी कॉम्प्लेक्स। आप ही के प्रीमाइसेस में मैंने जेके वाटर का जेके का पानी ट्रीट किया हुआ है। Yes. Any more question? Sir, if we plan for 600 KLD CETP plant for the dyeing unit, so what is the capital cost approx? सर अभी हर एक चीज का मतलब प्राइस में प्राइस लिस्ट नहीं है मेरे पास कोई भी। Approx tentative. नहीं, वो 1 to 1 अभी आप डाइंग मिल है, तो अब तक डाइंग मिलता। अभी जो आगे की जो आपने नए प्रोसेसेस जो लगाए हैं, नए जो कपड़े बना रहे हैं, जिसमें आप एंजाइम्स यूज करते हो, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, एंजाइम बेस्ड आपका कपड़ा का पूरा प्रोसेसिंग है, एम्बोसिंग, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। नहीं, कपड़ा ये कौन देखता है? स्पेसिफिक साड़ीज जो बनती है, नहीं, I'm just missing it out. तो वो सब में 2 लाख तक सीओडी जाती है एफएल की। मतलब वो केस टू केस डिपेंड करेगा आप क्या प्रोसेस करते हो, लॉन्ग टर्म तक क्या करने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह रहती है, बट एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई एक पैरामीटर सेट करना। Okay, so we continue. Yeah. Now I invite Sri Kapil Bhai Gandhi, Honorable Secretary of Mantra. Okay, sir. Probably may have program because I was occupied in some other meeting, but बहुत अच्छा insightful session था ये। मैं recording अगर किया तो पूरा recording में देख लूँगा। और हमारे इंडस्ट्री में जो वाटर जेट इंडस्ट्री बेसिकली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वीविंग इंडस्ट्री, उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोल्यूशन आपके पास है, और वो प्रमोट भी करेंगे। इवन द प्रोसेस ऑफ के जो सोल्यूशन है वी विल प्रमोट दिस। थैंक यू। Thank you, Ashish Bhai, for your comment. Now I invite Sri Kapil Bhai Gandhi, Honorable Secretary of Mantra, to deliver the vote of thanks. થેન્ક યુ। આજના પ્રોગ્રામમાં ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ JLD ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ માટે ખૂબ જ રસપ્રદ અને ઊંડાણપૂર્વક માહિતીપૂર્વક આપણે આજના જે મેઇન સ્પીકર હતા નીરજભાઈ મીઠાણીએ તેમણે આપ્યું, અને પ્રેક્ષકોને પણ થોડું પાછું લઈને જશે, અને એમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે તો આપની વાત આપનો કોન્ટેક્ટ કરશે। અને બીજું તો ખાસ પહેલી વખત મંત્રા અને ચેમ્બર સાથે હાથ મિલાવ્યા છે, માટે આપને ચેમ્બરનો પણ ખૂબ આભાર આપું છું। આજે પ્રમુખ નિખિલભાઈ મદ્રાસી અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અશોકભાઈ જીરાવાલા એ ચાઇના ગયા છે, એટલે હાજર નહીં થઈ શક્યા, પરંતુ ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ વિજયભાઈ મેવાવાલા આજે આપને આવકાર પ્રવચન આપ્યું હોય તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ આશીષભાઈ ગુજરાતીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, અને સેક્રેટરી વિજયભાઈ જરીવાલા પણ અહીંયા રહીને અને સભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી હતી આ સેશનમાં, તો એમાં પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ખાસ તો
અમારા ડાયરેક્ટર રક્ષિત સાહેબ એમણે પણ પ્રોગ્રામ વિશે માહિતી આપી તો એમનો આભાર અને એમઓસી કરવા બદલ જરીવાલાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને પ્રેક્ષકો આપના વગર તો આ પ્રોગ્રામ અધૂરો જ હતો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા તે માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને બીજા ચેમ્બરના પણ જે અહીંયા સંચાલન કરી રહ્યા છે તો તેઓનો પણ